ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أسأل الله كل غالب ومطلوب كل طالب قرارا غير فرار صاحب ذوالفقار خصيم الجنة والنار وفاتح خيبر خندق بدر حنين علي بن أبي طالب صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم بانی مجلس کی اس مجلس کو قبول فرمائے. آپ تمام کنیزان زہرا کی قصر عابدہ میں حاضری کو مالک قبول فرمائے. کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم مظلوم کربلا کے. جس عزادار کے دل میں جتنا علی بستہ ہو اتنی بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداروں مظلوم کربلا یہ مجلس منسوب ہے بالخصوص چھوٹی شہزادی زینب صغرا ام کلثوم. غور کریں کہ چھوٹے جو گھر کے ہوتے ہیں ان کے سب ناز اٹھاتے ہیں. پنجتن پاک کی سب سے یہ چھوٹی سی تلی بن کے جو آئی ہے دنیا میں، اس بی بی کی اتنی منزلت ہے کہ تاریخ نے بی بی کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اور تاریخ میں بالکل نہ کے برابر لکھا ہے. لیکن اہل بیت کے احادیث میں جو ریسرچرز ہیں انہوں نے جو ریسرچ کیا بی بی کی حیات طیبہ جو بتائی گئی ہے وہ بالکل جدا گانا ہے، کافی ڈفرینس ہے. اور بالخصوص اس بی بی کے دیکھیے کتنا ظلم کیا گیا ہے کہ مورخ نے مسلمانوں نے بی بی کے متعلق بہت غلط باتیں لکھی ہے. جیسے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے ان کے لیے پیغام بھیجا تھا معاذ اللہ وہ نجیب یہ نورانی. لیکن تاریخ میں لکھا کہ تاریخ میں جیسے بی بی ختیجہ کے بارے میں بہت کچھ دھاندلی کی ہے لکھنے والوں نے، اسی طرح یہ شہزادی کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوا ہے کہ بہت غلط بیانات بی بی کے بارے میں آئے. جبکہ یہ شہزادی کا مرتبہ وہ ہے کہ پانچوں جب یہ بی بی دنیا میں آئی تو ایک دیکھنے کا منظر تھا. رسول خود چلتے ہوئے آئے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مجھے دے دو، کہاں ہے وہ جو میری اصل ہے، کہاں ہے وہ جو میری اصل ہے. اس میں رسول ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ بی بی کے ساتھ رسول اکرم کا کچھ وابستگی ہے. اور نام خود رسول اکرم نے بی بی کو گود میں لے کے کہا کہ یہ ام کلثوم ہے، یہ زینب یہ زینت علی کی چھوٹی زینت ہے، زینب صغرا وہ زینب کبرا یہ زینب صغرا چھوٹی زینت علی کی. عزاداروں بھی ہاتھوں میں لینے کے بعد رسول اکرم نے اس بچی کے رخسارے پہ اپنا رخسارہ رکھا. رکھنے کے بعد ام کلثوم یعنی اپنے یہ جو بتانا چاہتے ہیں 7 لفظ ہے پورے، اگر 2 ہٹا دیں اصل تو پھر کاف لام سے واو میم آتا ہے. رسول اکرم بتا رہے ہیں کہ 5 لفظیں کی اصل ہے اور یہ لفظیں جو ہے دنیاوی اعتبار سے کچھ الگ معنی نکلتے ہیں اور آخرت اور تجوید کے تفسیر سے حرف ابجد سے الگ معنی نکلتے ہیں. کاف جو کلثوم میں استعمال ہوا ہے وہ کاف بڑی والی کاف ہے. ام یعنی اصل، کاف کی اصل، کاف لام کی اصل، سے کی اصل، واو کی اصل اور میم کی اصل. یہ ورڈز جو ہیں اس پہ اگر غور کرے تو بی بی کتنی بابرکت ہے، کتنی معجزاتی ہے، کتنی عزیزہ ہے، کتنی میوہ دل علی و بطول ہے پتہ چلتا ہے. عزاداروں جو اصل والی کاف ہوتی ہے نا اس میں کن فیکن یعنی جو کہہ دے بی بی وہ ہو جاتا ہے. بی بی کو وہی اختیارات ہے جو امامت کو اختیارات ملے ہیں. لام سے لام قرآن میں بھی لام سے ولایت میں بھی لام استعمال ہوا اور قرآن میں الف لام میم جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتی وہ لام جس میں اللہ کچھ راز چھپا کے رکھا ہے. یہ بی بی کی حیات طیبہ میں بھی خدا نے کچھ راز چھپا کے رکھا ہے. لام سے ولایت والا لام بھی ہے اور اللہ والا الف لام بھی قرآن والا بھی لام ہے. صحیح یعنی ثواب عطا کرنے والی. اس کو میں تھوڑا سا بریفلی ایکسپلینیشن کروں گی. ثواب کیا چیز ہے؟ عبادت ثواب ہے نا، روزہ ثواب، نماز ثواب، قرآن ثواب، ذکر ثواب، تسبیح ثواب،
खैरात सवाब जितने सवाबात है, इन सब सवाबात को, इन जितने सवाब के काम है, इन सब सवाब के काम को अल्लाह की बारगाह में पहुंचाने वाली यही बीबी है। अगर देखेगी कि बाबा की विलायत दिल में है तो सवाब पहुंचेगा, अगर अली की विलायत के मुनकिर है तो ज़ैनब से कोई बीबी कुलसुम से कोई सवाब नहीं मिलने वाले, क्योंकि अल्लाह ने सवाब इस बीबी के जरिए लेना है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। बहू से दो राज इसमें भी है, विलायत भी है, वजहुल्लाह भी। अली का चेहरा वजहुल्लाह है और हू में एक वो इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह हू पर्दे हो, जहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं वहाँ सिर्फ रसूल अकरम गए थे मुकाम हू तक। हम लोग भी इस बात को गौर करते हैं, बहुत कुछ लोग बैठ कर तस्बीह करते अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू। अगर यहाँ अली नहीं तो कहे अल्लाह, अगर दिल के अंदर अली ही नहीं, अस्ल नहीं, सिफात नहीं, जमालात खुदा नहीं, कमालात खुदा नहीं, मजहर खुदा नहीं, ये सब मिलते हैं तो अली बनता है, और अली तक पहुँचते हैं तो अल्लाह मिलता है। अगर अली तक नहीं पहुँचे तो फिर कहते रहे कुछ नहीं मिलेगा। यानी वो मुकाम हू यानी अल्लाह की राजदार, अल्लाह की पर्देदार को कुलसुम कहते हैं। फिर है मीम। अब मीम आए, मीम से बीबी क्या है, फिर मीम इधर बाप से मिली और अल्लाह से मिली। तफसीर अब ये मीम से गौर करिएगा कहाँ कहाँ मिलती है तफसीर। मीम से मोहम्मद, मीम से माबूद। रसूल ने अपने नाम की मीम बीबी के नाम में आखिरी में रखी। रसूल के नाम में मीम पहले आता है, फिर बीबी के नाम में मीम आखिर में आता है, और मीम से माबूद अल्लाह। अब आए देखिए, मीम रसूल के नाम में पहले आता है, जो वजहुल्लाह है, जो ऐनुल्लाह है, जो खिलकत कायनात का सबब है, जो अल्लाह के घर से आया है, अल्लाह जैसा लगता है गौर करने वालों को। वो जब काबे में आए तो पहले मोहम्मद के नाम में मीम है, यानी मोहम्मद के लुआब उनकी पहली ग़िज़ा बनी, और ये कुलसुम के नाम में मीम आखिर में है तो अली की आखिरी ग़िज़ा बीबी कुलसुम के घर की हाज़िरी, बीबी कुलसुम के घर की सहरी है। इफ्तार नहीं, सहरी की थी बीबी के पास। उसके बाद आए और नमाज सुबह से पहले मस्जिद पहुंच गए थे अली। तो पता चला कि वो जो कायनात को जिसका दस्त रिस्क बांटता हो, उसकी पहली ग़िज़ा मोहम्मद का लुआब और आखिरी ग़िज़ा कुलसुम बीवी का दस्तरखान। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सबसे ज़्यादा अगर दौरे हाजिर के उलमा में, ज़ाकिरीन में अगर किसी ने इस बीबी के ऊपर रिसर्च किया है तो वह है अल्लामा ज़मीर अख्तर नक़वी अलैहि मुक़ामहू। उन्होंने तकरीबन 1000 सफ़ात की किताब बीबी की हयात तैयबा पे लिखी है। 4-5 साल पहले उन्होंने बहुत सारी किताबों का रेफरेंस भी दिया था। अब तो वो नहीं रहे, चले गए इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और उम्मे कुलसुम पे, बीबी उम्मे कुलसुम पे किताब लिखी, हज़रत क़ासिम पे किताब लिखी। उन्होंने अपनी किताब में शहज़ादी उम्मे कुलसुम के बारे में लिखते हैं, उनकी रिसर्च अपनी है, और रेफरेंस में ये सूरह कौसर पेश करके बताते हैं कि जिनकी माँ के ऊपर सूरह कौसर उतरा उनकी बेटी बांझ कैसे हो सकती है। वो सवाल पैदा करते हैं, जबकि ये तीर हदफ है अजीज़म, जिसको उम्मे कुलसुम ने औलाद अता की, जिनको औलाद ही नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, 14-14 साल बाद बीबी ने बेटी अता की है। जहाँ जहाँ उम्मे कुलसुम की मजलिस में पढ़ती हूँ वहाँ अजब रौनक होती है, अजब मुझे होते हैं माँ। और सबसे ज़्यादा करीमा है कि बहुत जल्द अगर हाजतें करवानी हो तो बीबी उम्मे कुलसुम के अलम पे आप या मजलिस में आप दामन फैला लें, क्योंकि ये बीबी बड़ी करीमा है, बड़ी रहीमा है, बड़ी शफीक़ा है, बहुत ज़्यादा जल्द अल्लाह, क्योंकि अल्लाह अहले बैत को बहुत चाहता है, पसंद करता है। तो अल्लाह अहले बैत के जो दिल से करीब है, जो रसूल की अस्ल है, जो अली की जान है, पंजतन की परवरदा है, जिसकी ज़ैनब उठ के गोद में उठाए, जिसके गहवारे को हसनैन झुलाए, और जिसके आने पे रसूल चल के आए, और जिसको देख के अली मुस्कुराए, उसे कुलसुम कहते हैं। अल्लामा ज़मीर अख्तर नक़वी अपनी किताब में तो बीबी उम्मे कुलसुम में लिखते हैं, उनकी अपनी रिसर्च है, क्योंकि अब तक तो जो मरसियों में जो हम सुनते आए ये है कि बीबी को औलाद नहीं थी। ये बाद में पता चला उम्मे कुलसुम यानी कुलसुम की माँ बेटियाँ थी, लेकिन तारीख़ बताती है उस किताब में उम्मे कुलसुम की कि 2 बेटियाँ और 4 बेटे थे, और करबला में उनके बेटे शहीद भी हुए। अब ये गौर करना है, यहाँ तक तो हमने पढ़ा है, लेकिन करबला की जो फहरिस्त है उस लिहाज से पूरा गौर करें तो हमें पता चले, क्योंकि वो रिसर्चर है, वो हर बात ऐसे ही नहीं कहते। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बीबी को वही विरसा मिला जो इमाम हुसैन को मिला। इमाम हुसैन की भी एक बेटी, ये बिल्कुल ज़मीर अख्तर नक़वी किताब से पढ़ी हूँ, इमाम हुसैन की भी एक बेटी करबला में बेवा हुई, और बीबी कुलसुम की भी एक बेटी करबला में बेवा हुई, क्योंकि उनका एक बेटा
जिनका नाम अपने बाबा के नाम पर बताया जाता है कि 4 कासिम थे करबला में। एक अब्बास के बेटे का नाम कासिम था, एक हसन के बेटे का नाम कासिम था। इस तरह बीबी कुलसूम के बेटे का नाम भी कासिम है। बिन औन, अगर आप देखिए गौर करें, कासिम बिन औन तो ये छोटी शहजादी का बेटा है और तारीख में इनके रोज़े बने हुए हैं और इनकी औलाद को बाप से नहीं बल्कि कुलसूमी लिखा जाता है। बीबी ज़ैनब की औलाद के आगे ज़ैनबी लिखा जाता है। सलवात पर मोहम्मद और हक़ाइक़ तो इमाम ज़माना पढ़ेंगे कि बीबी क्या है। खुतबे बीबी ने ऐसे खुतबे दिए हैं दरबार में, क्योंकि अब्बास जिसका विरसा बने हैं, शहादत जिसके एक भाई की कुर्बानी को ज़ैनब आलिया ने पेश किया जिसे हुसैन इब्न अली, और एक भाई की कुर्बानी ज़ैनब की तरफ बीबी उम्मे कुलसूम की तरफ से फिदिया बनी वो है अब्बास। गौर कीजिएगा कि कितनी बीबी की इज्जत है, जिसका फिदिया अब्बास और अब्बास के हाथ तमाम उम्मत की शिफात। यह है शहजादी उम्मे कुलसूम का मर्तबा। दरबार में जब जालिम इतरा रहा था, खुश हो रहा था, आपने बारहा मरसियों में भी सुना है, खुशी से चेहरा लाल था और कह रहा था कि हाशमियों ने ये किया। वहाँ पे दरबार में छोटी बीबी ने भी खुतबा दिया, बड़ी आखाजादी ने भी दिया और चौथे इमाम ने भी दिया शराबी के दरबार में, और बीबी सकीना ने भी दिया खुतबा, क्योंकि ये अली की पोती है। जहाँ इल्म नहीं, मालूम नहीं, वहाँ पर बीबी कुलसूम का खुतबा लोग कहते हैं बीबी कुलसूम ने खुतबा दिया ही नहीं। आपने कौन सी तारीख पढ़ी है कि आपको पता है कि किसने क्या खुतबा दिया? छोटी बीबी ने भी खुतबे दिए तो ये क्यों नहीं दे सकती? हाँ, मगर ये है कि बीबी के कमालात, फसाहत, बलागत, बीबी की बहादुरी, बीबी की जुर्रत, बीबी की तालीम, बीबी की पाकीज़गी, बीबी की हर कोई शय बीबी ज़ैनब के पीछे छुपी हुई है। जैसे मौला अब्बास के कमालात, मौला अब्बास की फसाहत, मौला अब्बास की बलागत, मौला अब्बास के सजदे, मौला अब्बास का किरदार, मौला अब्बास की शुजाअत आका हुसैन के पीछे छुपी हुई है, क्योंकि सब कुछ रखते हुए गुलामी कर रहे हैं। इसी तरह बीबी कुलसूम भी अपनी बड़ी बहन के कदम के पीछे कदम रखती है, बहुत कमालात रखते हुए भी आगे नहीं बढ़ती। ये अहले बैत के घराने की का ये फजीलत है कि जब बड़े होते हैं तो छोटे बाकमाल होने के बावजूद खामोश होते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। अज़ादारों, बीबी ने जब उस वक्त खुतबा जब ये इतरा के कहने लगा कि हाशमियों ने ढोंग रचा तो बीबी कुलसूम अब्बास बनी। जैसे ज़ैनब अब्बास बनी, अली बनी, वैसे ये शहजादी को जलाल आया। बड़ी जलाली बीवी भी है, बड़ी करीमा भी है। हाथ जोड़ के कहा, बहन इस कुत्ते को मैं ये जवाब दूँ? बीवी ने भरे दरबार में उसकी बेइज्जती की है। तलब यानी कुत्ता, अरबी में तलब कहते हैं कुत्ते को, इसको मैं जवाब दूँ? एक के कहा, अल्लाह की बाद दरूद व सलाम के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर तौहीद की हम्द व सना बजा लाकर कहा कि एक जुमले में पूरा हिला के रख दिया, उसके तकब्बुर को मिटा के रख दिया, उसकी शाही को हिला के रख दिया, उसके दरबार को मुतज़ल्ज़िल करके रखा। ऐ नजीस कुत्ते, तेरे मुँह से शोहदा के खून के खतरे टपक रहे हैं। बीवी के खुतबे का जुमला है। तू वो कुत्ता है कि तेरे मुँह से शोहदा के खून के खतरे टपक रहे हैं और हम तुझे ये मोहलत दे रहे हैं। कितना तो पाप का घड़ा भर सकता है भर। एक आम कुत्ता भी नमाजी सफेद लिबास वाले को नहीं भोंकता। तू वो नजीस कुत्ता है कि तेरे मुंह से हम हमारे भाइयों के, अहले बैत के, आले रसूल के खून के खतरे टपक रहे और तू उसके बावजूद हमसे कलाम करने की गुस्ताखी कर रहा है। पूरा दरबार हिल गया। फिर बीवी ने अपनी कुन फयकुन होने का मुजाहिरा किया जब एक नजीस हाथ उठा मासूम सी शहजादी की तरफ और कहा कि इस बच्ची को मैं कनीजे में लूंगा। जला रहा बीबी कुलसूम को एक मरतबा इशारा किया, ऐ जमीन मैं अबू तुराब की बेटी तुझे हुक्म देती हूँ। जैसे ज़ैनब ने हुक्म दिया था शाम गरीबा से कुछ लम्हे पहले वक्त तंगे असर, ऐ ज़मीन मैं अबू तुराब की बेटी हूँ, मेरा भाई नजर नहीं आ रहा है तो बलद हो जा। उसी तरह ज़ैनब बीबी कुलसूम ने कहा, ऐ ज़मीन मैं अबू तुराब की बेटी तुझे हुक्म देती हूँ, तू जरा इसको अंदर ले ले। यहाँ तक फंस गया, अंदर तड़पने लगा, हाथ जोड़ने लगा। बीबी
गलती हो गई। इस तरह बीबी ने अपनी जलालत दिखाई। फिर बीबी की दुआ, इसीलिए कहते हैं कि बीबी उम्मे कुलसूम की मजलिस में दुआ जरूर मांगना, क्योंकि ये तुम्हें खाली नहीं लौटाएगी। ये बड़ी करीमा है। हमने देखा है कई मरतबा लोग जब एक्सीडेंट हो जाता है, ये हो जाता है, हमसे भी पूछने तो हम कहते हैं पूछने बीबी उम्मे कुलसूम के दस्तरखान की नजर उठा लो, कहीं बीबी उम्मे कुलसूम का आलम है वहां जाओ। बिलखुसूस बेटे चाहिए तो ये बेटी, ये बीबी बेटे अता करने में बड़ी माहिर है, और बीमारों को शिफा देने में बीबी के पास कमालात है, क्योंकि बीबी के पास कुन फयकुन है। अल्लाह बीबी की सुनता है। अज़ादारों ने मजलूम करबला, वो वक्त आया जब दरबार यजीद में सज्जाद के खुतबे पर अजान हुई। बीबी जब ये बाजारों से गुजरती, वहाँ पर भी बीबी को बहुत जलाल आया। और एक ऐसा मुकाम है जहाँ बीबी को इतनी खुशी मैसर हुई बंधे हुए हाथों से कि बीबी ने बंधे हुए हाथ कैसे उठाया मुझे नहीं पता। दुआ के लिए दुआ दी, बीबी की दुआ हम सबको लग जाए, बानी को हम सबको लग जाए। बीबी हमारा फुर्सत लेकर हमें दुआएं दे के जाए। जब सैबुर के इलाकों वालों ने बीबी ये दुआ दे के हमें बता रही है, शियो तुम्हें अक्लमंद होना चाहिए। हर जगह यजीद ने प्रोपेगेंडा किया था, बाकी की बहनें आ रही है, बाकी की बहनें पत्थर लो, अंगार लो, पानी लो, सब लोग यजीद की बातों में आ गए। लेकिन हाय सैबुर के इलाके वालों ने अक्लमंदी से काम किया। जब तक ये काफिला पहुंचे उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन कराया, क्या वाकई ये बाकी की बहनें हैं, ये है कौन जिनके लिए इतनी तैयारी, हर एक मोड़ पे इनके लिए ऐसा जुल्म हो रहा है। तो जब तक ये काफिला पहुंचता, इंफॉर्मेशन जो आ गई थी उसके मुताबिक पता चल गया सैबुर के इलाके वालों को, ये बाकी नहीं, ये सैयदा का बेटा है जिसका सर बाजारों में गिरा है। ये बाकी नहीं है, ये बाकी की बहनें नहीं है, ये अली की बेटियां हैं जो मुफ्त की शहजादियां हैं। ये बाकी का सर नहीं, ये जन्नत के सरदार का सर है जो बचा बचा फिराया जा रहा है। अब उन लोगों ने यजीद की बात नहीं मानी, उन लोगों ने चादरें तैयार कर ली और रास्ते में चले रहे, मेरी आकाजादी आएंगी तो हम उनके चादरें अपने हाथ से पहनाएंगे। पर्दा, दुनिया को पर्दा सिखाने वाली अब बेपर्दा होकर हमारे इलाके से गुजर रही है। खुदा रहमत नाज़िल करे आपकी आवाज़ों पर। चादर लेके इस्तकबाल के लिए सैबूर में ठहरे तो छोटी बीबी ने अपने बंधे हुए हाथ में रख करके दुआ की, अल्लाह इस इलाके को हमेशा महफूज रखना, इनकी गोदियां आबाद रहे, इनके खेत खलियान हरे भरे रहे। अल्लाह कुलसूम का वास्ता इनके चश्मों का पानी मीठा हो जाए। ये बीबी कुलसूम की दुआ है। आज भी आप गूगल पे मार के देखिए, सैबूर एक लहलहाता, क्योंकि हुसैन की बहन ने, अब्बास की अफ़ाज़ादी ने, अली की लाडली बेटी ने, रसूल की असल ने दुआ दी है। अल्लाह कैसे दुआ कबूल नहीं करता। हाँ, ज़ादारा ने मजलूम करबला जब 9 मुहर्रम की रात आई, हदिया, क्योंकि एक भाई का एक बहन ने देना था, एक बहन का हदिया अब्बास ने बनना था, इसीलिए तारीख बताती है कि बीबी बहुत रो रही थी। तो अब्बास ने कहा मैं हदिया बनूंगा आपकी तरफ से, और आखा का हदिया बीबी ज़ैनब की तरफ से पेश होगा। अज़ादारों हदिया तो पेश हो गया, लेकिन जब ये काफिला गुजरने लगा ना 11 मुहर्रम, जिन्होंने हदिया दिया था वो उसके लाशे पे ठहरी हुए थे। ज़ैनब के बंधे हुए हाथ से ज़ैनब शब्बीर के लाशा, ये लफ्ज बोल रही हूँ, लाशा था ही नहीं। लाशा उसको कहते हैं जिसके हाथ पांव सलामत हो, गर्दन पे सर लगा हुआ हो, और बहनें आई तो लाशे के चेहरे की ज़ियारत हो जाए। अजर रिसालत में सरदार जमाना ने जन्नत के सरदार को इस कदर लूटा था, जिसकी जैसे तकलीफ पहुंचाई ना मौला हुसैन की शहादत के बाद, उसको वक्त का इमाम ज़ियारत नाहिया में इस तरह बयान करते हैं, या अबाब दिल्ला आप वो मजलूम है कि शहादत के बाद आपके बदन के ऊपर फौरन जुल्म शुरू हुआ, आपकी अंगूठी लूटी गई, आपका मामा लूटा गया, आपकी कबा लूटी गई, अंगूठी के साथ उंगली काट दी गई। ऐ मेरे मजलूम, जब आपके लाशे को गोरों से पामाल कर दिया गया और आपके टुकड़ों को जमीन से मिला दिया गया। इस कदर पामाली हुई है। मौला अब्बास के लाशे के भी बहुत टुकड़े हुए, लेकिन सबसे ज्यादा इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में कहते हैं, ये बहुत सख्त जुमला है कि अब आपके गोश्त को रौंद डाला गया, फिर पीस डाला गया। जब बहन लाशे पे रुखसत होने के लिए आई तो बहन हैरान होकर रह गई, क्योंकि पहचानने में नहीं आता था। अज़ादारा ने मजलूम करबला हाथ बंधे हुए, सर पे चादर नहीं, रो रो के कहती हुई, मुड़ मुड़ के देखती हुई गई, शब्बीर तेरी गुर्बत की धक्का, मैं
मैं तुझको कफन पहना देती भाई, जमजम के तुझे छींटे देती, कौशल से तुझे नहला देती भैया, तुझे मालूम तो है रस्सी में बंधे हैं हाथ मेरे। खुदा के पुरसे को कबूल करे, सैयदा राजी जाए। अज़ादारा ने मजलूम में करबला बीबी कुलसुम का फिर जिक्र मिलता है। जब नाना के वतन लौट के आई 1 साल बाद, बैरून मदीना देख के हमारी आखाजादी ने पूछा, छोटी शहजादी उम्मे कुलसुम ने, सज्जाद ये हम कौन से शहर में आ गए? सज्जाद ने कहा, पुती अम्मा हम अपने नाना के वतन ये बैरून मदीना है जहाँ हम ठहरे हुए हैं। तो फौरन मरसिया पड़ा, ऐ नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न। जब गए तो गोदियां आबाद, वारे सलामत, भाई सलामत, अब आए हैं तो हसरत और दाग लेके। ऐ मदीना हम तेरे वादी को लेके नहीं आए, ऐ मदीना तो उजड़ गया है, हम बाजारों में फिर के आए। जज़ाकुम रब्बकुम। अज़ादारा ने मजलूम में करबला ये उजड़ा हुआ काफिला अब करीब है कुछ दिन की और 10-11 दिन की और मेहमान नवाजी है। अज़ादारो सैयदा का लाल हमारा मेहमान हुआ है। वापस जब आए ना, हमारा कोई 5 साल बाद आ जाए हम पहचान लेते हैं, लेकिन हाय उम्मत ने ऐसा लूटा कि दोनों शहजादियां पहचानी नहीं गई। भाई मोहम्मद हनफिया ने ज़ैनब आलिया को नहीं पहचाना, कहा ज़ईफा मेरी बहन ज़ैनब कहाँ है? बीबी सोहरा आई चादर खींच के कहा, ऐ ज़ईफा मेरी फूफी ज़ैनब कहाँ है? शहजादियां नाना के रोजे पे आई, जाली में हाथ रख के कहा, नाना बागी की बहन का सलाम ले। जहाँ जहाँ फिराई जाती रही, लोग पत्थर मार मार के कहते थे, 36 मोड़ पे हमें बागी की बहन ने कहा गया। नाना बच गया तेरा दीन, 18 भाइयों के सरों पे रिदा लगती। नाना तेरा दीन बचा के ज़ैनब आ गई, बाजुओं मेरी सवालों के निशान। नाना मेरा अकबर नहीं आया, नाना तेरा हुसैन नहीं आया। जज़ाकुम रब्बकुम। इमाम ज़माना रख दी जाए। अज़ादारो बेटियां अपना दर्द दिल अम्मा से बयान करती है। तसव्वुर कीजिएगा, अब शहजादियां अम्मा की खबरों पे आई हैं, 1 साल से ज्यादा गुजर चुका। अब जो आई और इतने दाग उठा के लाई हैं कि क्या कहे क्या न कहे। ताकत नहीं, बदन जख्मों से चूर, दिल जख्मों से चूर, अब चलने की ताकत न रही, रेंगना शुरू किया। जालो बजालो जैसे अली अकबर के नाते पे हुसैन आए, अम्मा की खबर पे आखाजादियां आई, लिपट के कहती अम्मा अम्मा बेटियां आई है, अम्मा मेरी बेटियां बाजारों में फिर के आई है, अम्मा लौला भरने पहली नहीं, अम्मा शराबी का दरबार था, अम्मा ताजियानों पे ताजियां ने, अम्मा पिता के हिमायती हमारा कोई नहीं। अम्मा तेरा हुसैन नहीं आया, अम्मा मेरा अकबर नहीं आया, अम्मा मेरा कासिम नहीं आया। रोते रोते बीवी ने दर्द कहा, अम्मा मुझे अम्मा कहने वाले नहीं रहे, अम्मा मेरी नस्ल खत्म हो गई, अम्मा देखो मेरे बाजुओं में क्या है, अम्मा हमारे बाजुओं में मुशाहिदा कीजिए, मुलाहिजा कीजिए। कहते चादर हटाई और जख्मों को खबर ज़हरा से लगाया और बड़ी शहजादी ने हुसैन का खून भरा कुर्ता खबर ज़हरा पे डाला। खबर लंजे में आई, उठा ले क़यामत आ जाएगी, ज़ैनब उठा ले। 2 कदम पीछे हटी, अम्मा 1 साल बाद तो कुर्ता लाई हूँ अम्मा, और ये कि क़यामत आ जाएगी अम्मा मैं देख रही थी। अम्मा 70 कदम के फासले पर मैं फरियाद कर रही थी, नाना मेरी निगाहों के सामने हाय जालिम सीने पे सवार वो सख्त हाथ और वो तड़पना हुसैन का। आखिरी जुमला में मैं छोड़ रही हूँ, आप रो रहे हैं ना, पर कोई कुछ नहीं करता, लेकिन हाय ज़ैनब जब रोई अज़ादा में दोबारा कैद हुई। बस आखिरी जुमला, अली की शहादत और ज़ैनब की शहादत। अली शहीद हुए हालत सजदा में मस्जिद कूफा में, ज़ैनब शहीद हुई शाम के बाग में। ये भी सजदे में है, वो भी सजदे में है। बस तसव्वुर करना, आखिरी जुमला है, अली मर्द है, अली के 18 बेटे हैं, ज़ैनब जख्मी है, ज़ैनब शहीद हो गई है, ज़ैनब की कमर झुक गई है, ज़ैनब के पास अकेला सज्जाद है। यहाँ एक बार लगा, 18 बेटों ने आके सीने से लगाए, आए ज़ैनब एक बेटे का बार लहू में लोटी रह गई, सज्जाद की आवाज़ को भी मारा, गुजर गई और मोहम्मद अली अकबर। अल्लाह तुम्हारे वली का फरज
برلہ اس خلیل زندگی کو قبول فرما. بانی اور حاضرین ہم سب کو زینبی فاطمی کردار اپنانے کی توفیق عنایت فرما. عاشق امام زمانہ بنا دے, ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. اے میرے اللہ بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما. جو بیمار ہیں بحق کے بیمار کربلا صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو ذلت کے قرضے میں گرفتار ہیں انہیں نکال دے. ہمیں المصائب کے تصدق میں خدایا اکبر کی خیرات قوم کے جوانوں کو سلامت رکھ. جھولے والے کا صدقہ جو گودیاں سنی ہے, بی بی ام کلثوم کا واسطہ جو گودیاں سنی ہے, انہیں آباد فرما. اللہ رحمت اللہ علی قوم الظالمین.